friends, welcome again. We are going to continue the history and political science lesson number 1, historiography, the development in the West. In previous video, we see related with historiography, what is meant by historiography, who writes historiography, what is the aim behind this, why need of experts, then in which disciplines contributing their historical research, then traditions of historiography. These points we are going to learn in previous video. Now today we are going to continue this lesson, that is meant by uh, development of a scientific perspective in Europe and historiography. Development of a scientific perspective. Europe had achieved a remarkable progress till 18th century in the fields of philosophy and science. 18वीं सदी तक यूरोप ने एक नज़र में आने जैसा रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव किया था। फिलॉसफी एंड साइंस में एक बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करने का प्रयास करके उन्होंने एक वहाँ पे अपना एक स्थान बना लिया था। दैट मीन्स यूरोप में बहुत सी डेवलपमेंट हो चुकी थी 18वीं सदी के। Scholars belonging to one school of thought presented the idea of applying this knowledge of a scientific method to study the social and historical truth. After that, discussions were focused on the objectivity in the history and historiography. History gained importance over philosophical discourses and divine phenomena. In 1737 CE, the Göttingen University was founded in Germany, which had an independent department of history. Later, German universities became centers of historical studies. That means development of a scientific perspective. Historiography में scientific जो डेवलपमेंट हुई तो उनकी शुरुआत 18वीं सदी में हो गई। 18वीं सदी तक यूरोप में फिलॉसफी और साइंस में एक रिमार्केबल अचीवमेंट प्राप्त किया था। जो स्कॉलर्स थे एक स्कूल के, उन्होंने क्या किया, उनकी जो आइडियाज थी वो अप्लाइंग द नॉलेज साइंटिफिक मेथड से वो अपनी आइडिया अप्लाई करते थे फॉर स्टडी ऑफ सोशल एंड हिस्टोलॉजिकल ट्रूथ। Study of social and historical truth. After that, then they were focused on objectivity in history and historiography. उसके बाद में वो हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी में वो डिस्कशन करते थे। 1737 गोटिंगन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी फाउंडेड की गई विच हैड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। उनका एक अलग एक हिस्ट्री का डिपार्टमेंट था। उसके बाद में जर्मन यूनिवर्सिटीज बिकम द हिस्टोलॉजिकल स्टडीज सेंटर ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्टडी। जर्मन यूनिवर्सिटी जो थी वो हिस्ट्री की सेंटर बन गई। दीज आर डेवलपमेंट ऑफ अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। देन एनालाइज स्कूल्स एट द डॉन ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं सदी की शुरुआत was a new school of historiography arose in the France known as Annales School. Annales School ऐसा भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ सकता है। An idea was put forward that history is not just about the political events, kings, great leaders, wars, politics and diplomacy. It is also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, that means of a communication, social division and their collective psychology, etc. The French historian were the pioneers of the Annales school.
Then जो what we say analyze school का जो है एंड फिनामिस्ट हिस्टोग्राफी, इसके बाद में हम ऐसे सोच सकते हैं कि 1737 में जर्मनी में जो गॉटिंगेन यूनिवर्सिटी थी इंडिपेंडेंट, उसमें हिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग था। उसके बाद में जर्मनी हिस्ट्री का एक सेंटर बन गया। उसके बाद में एनालिस स्कूल जो था 20वीं सदी की शुरुआत में एनालिस स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी इन फ्रांस में उसका निर्माण हो गया। An idea put forward that history is not just about political event. History is not just political event. Kings, great leaders, wars, politics and diplomacy. History क्या है? War, leaders, politics and diplomacy है। It is about a climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions and their collective psychology, etc. The French historians were pioneers of analysis school. तो फ्रेंच हिस्टोरियन जो फ्रांस इतिहासकार थे वो pioneers of analysis school के पिलर यानी pioneers बन गए। Feminist historiography, the restructuring of a history from the perspective of woman is called a feminist historiography. Feminist historiography मतलब history from the perspective of woman, a restructuring of a history, that is called a feminist historiography. उसके बाद में feminist historiography में this thought was propounded by a French feminist scholar Simon de Beauvoir. Simon de Beauvoir ने वो विचार एक सामने रखा था। Feminist historiography emphasizes to include the woman in history and rethink on the male-dominated perspective of history. Later, many aspects of a woman's life become a focus of a historical research, such as their employment, their role in a trade union, family life, etc. After 1919, woman was portrayed as an independent क्लास। मतलब फेमिनिस्ट जो थे फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में, जैसे कि हम देखें, जैसे कि हम सोच रहे थे कि फीमेल को छोड़कर जो मूल तत्व था हिस्ट्री का, उसका विचार सामने रखा गया फ्रेंच फेमिनिस्ट स्कॉलर साइमन डी बिहेवियर। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी जो थी मतलब औरतों के बारे में इतिहास का लेखन, इंक्लूड वुमेन्स इन हिस्ट्री एंड रीथिंक ऑन द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव हिस्ट्री। उसके बाद में वुमेन्स लाइफ बिकम अ फोकस ऑन हिस्टोरिकल रिसर्च सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल, यूनियन, फैमिली एक्सेट्रा। उसके बाद आफ्टर 1990 के बाद वुमेन वाज portrayed as an independent class. The number issue would be. Next point is that notable scholars in Europe, यूरोप के जो महत्व इम्पोर्टेंट जो अति महनीय विचारवंत थे, आपके लिए स्टडी के लिए वो 6 विचारवंत हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट जो है रेने देकार्तास 1596 से 1650 तक, 1596 to 1650। देन वोल्टेयर जो था 1694 से 1778 तक। देन जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल। देन नेक्स्ट था तो लियोपोल्ड वॉन रैंके, देन कार्ल मार्क्स एंड देन एंसेल्म माइकल फौकाल्ट।
कार्ल मार्क्स एंड माइकल फुको ऐसे 6 जो विचारवंत हैं उनके बारे में तुमको बता दिया। फर्स्ट, रेने डिकार्ता from 1596 to 1650 डिस्कोर्स ऑन द मेथड कंट्री, जो फ्रांस का था, उनके जो थॉट और उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, it is an important to verify reliability of a historical sources, especially historical documents, by a critical examination. Never to accept anything as a truth till all grounds of doubt are excluded. A very good thing. That means never accept anything as a truth till all grounds of doubts are excluded. René Descartes. Then Voltaire Jotham is also from France, 1694 to 1778. He opened that historiography, the focus should not be only on the objective truth or chronology of a historical event. Prevalent social traditions, trade, economy, agriculture should be also considered as important part of it. Understanding all aspects of human life is important for history writing. He is known as a founder of a modern historiography. That means Voltaire is the founder of a modern historiography. So remember that for filling the blanks, George Wilhelm Friedrich, he also from Germany. René Descartes from France, Walt Francis, that is also from France, and George Wilhelm Friedrich Hegel is also from Germany. Historical reality should be presented in a logical manner. The order of a historical events are indicative of a progress over a period of a time. Presentation of a history will be definitely changed as a new evidence will come forth. In order to understand true nature of things, one needs to know both the sides, that is true and false, or good or bad. This method of analysis, which is based on opposites, is known as a dialectics. In the theory, first theory was proposed called as a thesis, while another contrary called this antithesis is proposed. Finally, after that discussion, both new theses having called as both is arrived called as a synthesis. Leopold van Ranke is also from Germany. His thoughts, he influenced the historical writings of the 19th century. He criticized the imaginative narration of historical events. He believed that it was possible to reach the historical truth with a great care. He gave a lot of importance of information gathered through the original documents. He also stated that all types of documents related with the historical events should be examined minutely with great care. Then fifth, Karl Marx from Germany. History is not about abstract idea but about living people. Human relationships are formed not only by fundamental needs of a people and the ownership but also by prevalent means, production of a meet those needs. The class which own the means of a production exploits the rest of classes. The uneven distribution of means of production in society leads to class struggle. Michael Foucault, he is from France. The present history of chronological order is not right. Objective archaeology is not to reach ultimate historical truth, but to explain the various transactions in past. He acknowledged that subjects that science and medicine, psychological disorders, prisons, administrations are valid for a histological analysis. Then Voltaire, some another
examples that for your study purpose I explain in Hindi for better understanding. रेने देकार्ता 1596 से 1650, मतलब उन्होंने जो साधन इतिहास लेखन के लिए जो साधन का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि कागज, उसकी विश्वासार्हता चेक करके लेनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। देकार्ते ये जो ये था तत्वज्ञ था, मतलब फिलोसोफिस्ट, वो फ्रेंच का था। डिस्कोर्स ऑन द मेथड उनका एक ग्रंथ है, उसमें एक नियम शास्त्र शुद्ध संशोधन बहुत महत्व का माना जाता है। एक कोई भी चीज सत्य है ये निसंशय से प्रस्तावित जब तक नहीं होता तब तक स्वीकार न करो, ये उनका नियम था। उसके बाद में आया वोल्टेयर, वो भी फ्रांस का था, मतलब देकार्त था। वोल्टेयर एंड लास्ट का फुको, ये फ्रांस के थे। बाद में हेगल, देन रांके एंड कार्ल मार्क्स, ये जर्मनी के थे। वोल्टेयर फ्रांस का था, वो भी एक फ्रेंच तत्ववेत्ता था। इतिहास लेखन के लिए केवल वस्तुनिष्ठ, मतलब सत्य या घटनाक्रम, इस पर कंसंट्रेशन न करके तत्कालीन सामाजिक जो परंपरा थी, जो व्यापार था, आर्थिक व्यवस्था थी, जो खेती बाड़ी थी, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर लिखना चाहिए या विचार उन्होंने सबके सामने रखा। और उसके लिए उसके बाद में इतिहास की जो जीवन का सर्वांगीण सोच होनी चाहिए, ये विचार वोल्टेयर ने सबके सामने रखा। उसके बाद में आ गया जॉर्ज विल्डन फ्रेडरिक हेगल, ये जर्मन तत्ववेत्ता है। उन्होंने एक तर्क शुद्ध पद्धति से जो इतिहास लिखा गया या इतिहास लिखना गया उसके बारे में उन्होंने भर दिया। जो इतिहास में जो घटना हुई है, पास हुई, उसमें एक स्टेज रहती है, उसके साथ इतिहास की बैठक होनी चाहिए। इतिहास लिखने वाले को जो वक्त वक्त पे जो सबूत मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, उसका विवेचन एक विज्ञान के तौर पर अभ्यास होकर उसमें लिखना चाहिए। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, ये ग्रंथ में उन्होंने अपने इसके बारे में कुछ विचार रखे। उसके बाद में आया लियोपोल्ड रैंके, 1795 1886। 19वीं सदी में इतिहास लेखनकारों ने बर्लिन के रांके के जो विचार थे उसका प्रभाव उन पर दिखाई देता है। इतिहास संशोधन चिकित्सक मेथड या पद्धति कैसी होनी चाहिए, मूल दस्तावेज के आधार पर जो सर्वाधिक जो महत्व का जानकारी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो ऐतिहासिक घटना से संबंधित जो दस्तावेज है उनका खोज लेना चाहिए। उनकी जो पद्धत मेथड है वो सत्य तक जाके पहुंच जानी चाहिए, और ऐसा विश्वास उन्होंने लिखा था। इतिहास कल्पना पर उन्होंने टीका टिप्पणी भी की थी। उन्होंने जागतिक इतिहास का जो सिस्टम थी, मांडनी थी, उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था। द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने अपने लेखों का संकलन किया। कार्ल मार्क्स इज फ्रॉम जर्मन, रांके फ्रॉम जर्मन एंड कार्ल मार्क्स फ्रॉम जर्मन। ये भी कार्ल मार्क्स बहुत बड़े विचारवंत थे जर्मनी के। 1818 से 1883, 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत इतिहास के दृष्टिकोण से जो लिखा, जो बताया गया, उसमें बहुत बदलाव, वैचारिक प्रणाली
का बदलाव आया। इतिहास जो है, जो कल्पना विस्तार नहीं है, इतिहास जो होता है जिंदा लोगों का होता है। इतिहास जो होता है इंसान इंसान के बीच के जो नाते संबंध होते हैं, उनकी जो जरूरत होती है, जो साधन उत्पादन जो रहते हैं, उसके ऊपर, उसके स्वरूप पर डिपेंड रहता है, विसंगत रहता है। समाज में जो घटक रहे हैं, उनको जो साधन उपलब्ध हुए वो सम प्रमाण में उपलब्ध नहीं हुए, मतलब किसी को मिले, किसी को साधन नहीं मिले, पर्याप्त साधन नहीं प्राप्त हो गए। इसी विषमता पर आधारित तो दो गुटों में संघर्ष होना अपरिहार्य है। मानव का इतिहास जो रहता है, जो साधन संपत्ति के आधार पर, आर्थिक शोषण के आधार पर होगा, ऐसी तरह से उन्होंने एक सोच दी थी। उनका दास कैपिटल नाम का ग्रंथ फेमस है। एंसल माइकल फुको, 20वीं सदी का फ्रेंच इतिहासकार माइकल फुको, उसकी लिखनी से इतिहास लेखन की एक नई संकल्पना सामने आई। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इसके ग्रंथ में उन्होंने इतिहास जो कालक्रम अनुसार जो अखंडित जो पद्धति मानती की है, वो पद्धति गलत है, ऐसा उनका कहना था। जो पुरातत्व में अंतिम सत्य तक पहुंचना ये उद्दिष्ट नहीं है। गत काल में, भूतकाल में जो सत्यंतर स्पष्टीकरण देने वाला जो कल होता है, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया। फुको ने इतिहास में जो सत्यंतर स्पष्टीकरण जो देना है, उसके ऊपर उन्होंने भर दिया। इसके लिए इस पद्धति को पुरातत्व ऐसा बोला जाता है। इतिहासकारों ने जो विचार में न लिए, मनोविकृति, वैद्यक शास्त्र, तुरुंग व्यवस्था, इस विषय में इतिहास के दृष्टिकोण से विचार किया गया। आधुनिक इतिहास लेखनकारों ने की व्याप्ति इस तरह से बहरती गई। इतिहास साहित्य, स्थापत्य, शिल्पकला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, चित्रपट निर्मिति, दूरदर्शन, इस तरह से विषय इतिहास स्वतंत्र लिखे जाए। मेरे ख्याल से आपको मेरा कहना समझ में आया होगा या समझा होगा। I think all of you understand well, very well. Here the first lesson, historiography, the historiography lesson जो था, डेवलपमेंट इन द वेस्ट, ये यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।